Okay, in last lecture I have shown you some of the color combinations, some of the tools, some of the layers options. ठीक है. Also I have shown you logo designing options, कैसे आप लोग logo design कर सकते हो और कैसे उसको represent कर सकते हो, how you will represent your logos, what should be the document size, what should be the what is the letter size, what are different types of sizes used for designing. ठीक है. आपको एक logo design करके दिखाया था मैंने. आपको एक विंडो शेयर करता हूँ सॉफ्टवेयर. ठीक है. विंडो विजिबल है सबको? हो सर. ठीक आहे. असं काहीतरी एक मी लोगो डिझाईन करून दाखवलं होतं तुम्हाला. बेसिक लोगो एकदम. Next, these are the Pantone colors. I have shown you some of the Pantone colors, how to create, how to save. Okay, what are the lab colors? What are the color combinations or the options which you select while creating new swatches? Okay, these are all the swatches in the color panel. When you create new swatch and when you edit that, in that you will get color type, you will get color modes. Okay, we also have Pantone color modes. These are different types of Pantone color modes. Okay, also we have Toyo 94 color finder. The color, if you select from any of the image, it will recognize the color tone and the color combination of that color, and it will apply on the dependent document. ठीक है. कौन से भी डॉक्यूमेंट का जो हम लोग प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, इफ इट इज अ लेटर, लेटर इज मैक्सिममली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग. ठीक है. बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह उसके, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं, सम डॉक्यूमेंट्स आर created to be published on the internet. Okay, or some documents are created just for a ad purpose. Okay, ठीक है. जस्ट जो ऑनलाइन हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और डिजिटली जो प्रेजेंट करते हैं, उस टाइप के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन टाइप्स रहते हैं, विच वी डिजाइन इन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. अभी मैक्सिमम जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है डिजिटल पब्लिशिंग के लिए. मैक्सिमम जो डिजिटल पब्लिशिंग का वर्क होता है, दैट इज दिस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली यूज्ड फॉर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग. ठीक है. न्यूज़पेपर के जितने भी स्टूडियोज या फिर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह रहेंगे, वहां पे यू विल गेट कोरल ड्रॉ एंड दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है. कोरल ड्रॉ के अंदर जो है जो कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइनिंग का वर्क रहता है वो सब होता है. बाकी जो क्रिएशन का, जो न्यूज राइटिंग का वगैरह, कंटेंट राइटिंग का जितना भी काम है, इट इज डन इन डिजाइन सॉफ्टवेयर. ठीक है. InDesign software is basically used for digital publishing. इतना याद रखो आप लोग. So next, also I have shown you how to create the palettes, how to add images. This is the image plane. ठीक है. हम लोग जो इमेज जिसके अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं, 3ds Max ऐसे टाइप का इमेज प्लेन रहता है. In this InDesign, you will get this as a frame. ठीक है. Rectangular frame tool, and in this frame you have to attach images by pressing Ctrl D. You can get different types of images. I'll just get one image. Okay. Now this is the image. This is the frame tool. This is rectangular frame tool. ठीक है. अब इसके अंदर जो है वो इमेज इंपोर्ट किया है, बट द साइज ऑफ द इमेज इज मच लार्जर as compared to the size of this box. ठीक है. If you want to fit the image in the box, then you have Control Alt C. Okay. Control Alt Shift C is to fit the image in the box size. Okay. Next, you have Control Alt C to fit the box according to the image. Yeah, or fit the frame according to the image. Control Alt Shift C, fit the image in the frame. ठीक है. फ्रेम के हिसाब से इमेज का साइज एडजस्ट होगा. ठीक है. एंड आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट यूज शिफ्ट इफ यू आर स्केलिंग. ठीक है. स्केल कर रहे हो आप कोई भी इमेज डायरेक्टली, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट स्केल. यू कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट while scaling or resizing the image. ठीक है. अब डायरेक्टली रिसाइज करोगे तो इमेज स्ट्रेच होगा. सी like this. If I do not press shift, it will resize or it will scale at any dimension. Width and height का रेशियो उसका मेंटेन नहीं रहेगा. You need to be
sure that if you are scaling the image, you should press shift, and you should resize the image according to its dimensions, original dimensions. नहीं तो फिर वो आपको कुछ कुछ फोटोज ऐसे दिखते हैं डिजाइनिंग के अंदर, दे आर स्ट्रेच, ठीक है, कुछ कुछ ह्यूमंस के फिगर्स रहते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं दैट गेट स्ट्रेच्ड इन द image when you resize it. Okay, so just press shift while resizing. ठीक है, frame size. Next, I have shown you the links panel. ठीक है, links panel have all of the images or the links or the external import elements. ठीक है, externally जो भी हम लोग elements import करेंगे, it will create a link, मतलब it will save the path from where you have imported the particular image or particular object. ठीक है, कोई भी अगर आप external image in upload करोगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, then it will be saved in the links file. It will create a link of that. Okay, and if you click on that image, particular image, you will get the information or the link info. ठीक है, उस particular element का जो भी information रहेगा, you will get in this drop down list or the link info panel. ठीक है, इसके अंदर आएगा JPG, the color space of the image, status of the image, status, या फिर अगर आपका कोई image missing रहेगा, it will show a red sign. ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, रेड साइन, और उसको फिर आपको फिर से लिंक करना पड़ेगा. इट विल नॉट गेट द पाथ फॉर सेविंग. ठीक है, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपका कंप्लीट हो गया है, देन यू नीड टू फर्स्ट आई हैव शोन यू हाउ टू सेव द फाइल्स. ओके, देन if you want to change the format, or if you need to change in other file format, then you need to use save as. ठीक है, save as का ऑप्शन आपको आएगा. सर काय झालं? Okay, you will get different types of options for saving. Save as के option अलग रहेंगे, but if you want to change the format of your saving file, ठीक है, या फिर आपको अगर किसी और format के अंदर save करना रहेगा, you just have to press export. ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो या फिर कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट. कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एक एक्सपोर्ट का विंडो ओपन होगा, देन यू कैन एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट. ठीक है, अभी इसके अंदर आएगा एडोब पीडीएफ इंटरैक्टिव. ठीक है, अभी इंटरैक्टिव अगर आप क्रिएट करोगे, देन कोई भी अगर पीडीएफ क्रिएटर या फिर पीडीएफ रीडर का कोई सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर एडिटर का एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उसके अंदर यू कैन इंटरैक्टिवली चेंज the placements, you can change the fonts of the saved file pdf interactive में. ठीक है, और इसके अंदर कभी कभी कैसा होता है, if we save as pdf interactive and if you go for printing, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए अगर आप लेके जाते हो ये पीडीएफ का डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो आपने क्रिएशन के वक्त जो फॉन्ट्स यूज किए, ठीक है, दैट फॉन्ट्स विल नॉट बी विजिबल व्हाइल प्रिंटिंग. ठीक है, प्रिंटिंग के टाइम पे वो फॉन्ट्स का प्रॉब्लम आता है. if it is standard font which is always available in all of the softwares, ठीक है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स है जो यूनिवर्सली सब सॉफ्टवेयर्स में, जो भी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है वो और मशीन्स में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहते हैं. बट इफ यू हैव यूज्ड सम अनदर फॉन्ट एंड इफ दैट फॉन्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिंटर जिससे अटैच किया हुआ है, जहां से वो आप लोग का प्रिंट निकालने वाले हैं, उसके अंदर अगर फॉन्ट नहीं रहेगा, देन इट विल गेट टू अ डिफॉल्ट फॉन्ट और वो आपका फॉन्ट उतना प्रिंट ही नहीं होगा. ठीक है, इफ यू सेव फॉर इंटरैक्टिव पीडीएफ. ठीक है,
Next, if you save for PDF print, then it will not save the files or the fonts in that. ठीक है, तो वो फॉन्ट आपका फिर चेंज नहीं होगा. यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इन द रिक्वायर्ड फॉन्ट और द डिजाइन. ठीक है, उसके बाद आएगा ईपीएस. ईपीएस इज अनकॉम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट. ठीक है, अनकॉम्प्रेस्ड. इसके अंदर जो है आपका कॉम्प्रेशन रेशो काफी लो रहता है. ठीक है, इट विल नॉट कॉम्प्रेस योर फाइल्स, इट विल सेव the memory of the images, the memory of the file as it is. ठीक है, for example, if I have see, for example, this image file, I have this box. ठीक है, it have certain values for saving. ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है, it have certain values for saving. ठीक है, इसका जो पिक्सल रेशियो रहेगा इमेज का, it will save according to the memory. ठीक है, I will check this. See, the size of this is 69 KB. ठीक है, 69 KB का ये फाइल साइज है. इमेज फाइल, this image file is 69 KB. If I save the whole document in EPS file format or uncompressed file format, then the size of the image will remain the same. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेव नहीं करेगा. इट विल सेव द फाइल अकॉर्डिंग टू दिस इंपोर्टेड फाइल साइज. ठीक है, मतलब इट विल इंक्लूड द कंप्लीट फाइल साइज, नॉट द डॉक्यूमेंट फाइल साइज. अभी इतना एरिया कवर हो रहा है इस डॉक्यूमेंट का. इफ द डॉक्यूमेंट साइज इज, फॉर एग्जांपल, सी this is 69 KB and the size of the complete document of my complete document is 50 KB. ठीक है, 50 KB का फाइल साइज रहेगा. तो it will not save in 50 KB, it will also include the file size of the complete image. ठीक है, या फिर if you are saving in compressed file format, मतलब JPG में अगर आप सेव कर रहे हो, it is a compressed file format, JPG और JPG. ठीक है, उसमें सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट ने जितना फाइल का साइज कवर किया है डॉक्यूमेंट के अंदर, उतना ही उसका मेमोरी सेव होगा. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू सेव दैट टाइप ऑफ फाइल साइज. ठीक है, मतलब आपको उसके अंदर भी थोड़ा सा कॉम्प्रेशन रेशियो का, स्केलिंग रेशियो एंड कॉम्प्रेशन रेशियो का इफेक्ट दिखेगा. ठीक है, दिस एक्चुअल पीपीआई ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल इज 72 पिक्सेल्स. ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट का साइज भी 72 पिक्सेल्स रहेगा, देन इट विल बी अनकॉम्प्रेस्ड. ठीक है, इट विल बी अनकॉम्प्रेस्ड फाइल साइज. तो इस टाइप के फाइल्स आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो. Next is ETUB. This is also a file size that you save for the internet. ठीक है, इंटरनेट के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे या फिर एड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके लिए आप लोग ये फाइल साइज सेव कर सकते हो. नेक्स्ट इज Flash CS6 Professional. ठीक है, अभी इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, Flash is also a vector design software and it is also a creation of Adobe. InDesign is also the creation of Adobe and it is also a vector software. So the objects and the elements you create in this, the tools are almost similar as compared to Flash. ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग इसके अंदर, if you are familiar of this software and you do not know how to create animations, ठीक है, एनिमेशन अगर आपको फ्लैश में एनिमेशन करना नहीं आता है, just you know how to design, then you can design certain elements and you can give to the flash animator. You can export it as a flash file. The elements, पूरे elements आपके डिजाइन किए हुए रहेंगे, you just need to animate that. ठीक है, you can give to a flash animator the Flash CS6 Professional, मतलब जिसके अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल रहेगा, if it is a CC, तो यहाँ पे आपको आएगा Flash CC Professional FLA. ठीक है, मतलब FLA फाइल, फ्लैश फाइल सेव होगा इसका, मतलब सब डॉक्यूमेंट के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो वैसे ही सेव होंगे अकॉर्डिंग टू योर लेयर्स. ठीक है, next is Flash Player SWF. If you have created an animation or you have exported an animation in this, then you can save the file as Flash SWF. SWF is a shockwave file. ठीक है, and shockwave file plays in shockwave file player. ठीक है, उसके लिए एक फ्रेम प्लेयर चाहिए आपको शॉकवेव फाइल का, तो उसके अंदर आपका फाइल्स प्ले होगा. नेक्स्ट इज InDesign मार्कअप, IDML. ठीक है, InDesign मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, अभी इसके अंदर जो रहेगा एक लैंग्वेज रहेगा उस टाइप के. दिस इज यूज्ड फॉर अपलोडिंग. इंटरनेट के ऊपर जब अपलोड करोगे तब वो फाइल का आप लोग सेव कर सकते हो. इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर कोडिंग पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज JPEG. JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. इसके अंदर आप लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो. इट इज अ compressed file format. Okay, next is PNG, portable network graphics. PNG has a transparency in its saving. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगर आपको सेव करना है
मतलब डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड निकालना है या फिर डॉक्यूमेंट के सेंटर में या फिर कहीं पे, तो यू नीड टू शो अ ट्रांसपेरेंट फाइल or transparent background. Through that, then you need to use the shockwave file. Sorry, you need to save the PNG file. Okay, PNG file is for portable netographics. Okay, XML. XML is a internet. ये भी internet का एक फाइल है. ठीक है, XML is a HTML फाइल टाइप. ठीक है, जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, to upload it on the internet or the web. ठीक है, these are different types of save as types और export types. ठीक है, save as type, यहाँ पे जो export का window आएगा, if you need to export the document in particular file format, you need to press Control E और go to file export. ठीक है, ये सारे files you can export. Next, after completing this, अब इसमें डिजाइन वगैरह रहेंगे कुछ. I'll just add a basic background. इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ मैं, so it will look good. Control G is a shortcut to create group. Drop shadow, outer glow. Yeah, so something like this I have created and I want to save this. ठीक है, इसको मैंने सेव भी किया है. But what happens, अब ये जो इमेज का फाइल है, इमेज फाइल I have imported from the desktop. ठीक है, ये वाला जो इमेज फाइल है मैंने डेस्कटॉप के ऊपर से लिया है. And if I have to open this document or I have to show this to someone else, मतलब आपको अगर एक्सपोर्ट करना रहेगा डॉक्यूमेंट कहीं पे, तो दूसरे पीसी पे या फिर दूसरे लैपटॉप में वगैरह ओपन करना रहेगा, देन यू विल नॉट फाइंड दिस इमेज इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है, क्योंकि ये फाइल का जो लिंक है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव है. सी डेस्कटॉप के ऊपर, एंड दिस फाइल इज सेव्ड इन माय ड्राइव. ठीक है, इस ड्राइव के अंदर मैंने ये वाला फाइल सेव किया है. ओके, आई हैव सेव्ड दिस फाइल इन दिस फोल्डर. सर कोणती ड्राइव ती ब्लँक झाली, स्क्रीन ब्लँक झाली आता मगाशी. अच्छा, okay, I have saved this file in a specified folder or a path. Okay, then I will just select this, all of this, or I will just go to file and create a package. ठीक है, ये बहुत ही important part है. जब आपका पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपको अगर ये फाइल किसी और कंप्यूटर के अंदर ओपन करना रहेगा, then you need to create a package of all of the elements included in this file. ठीक है, आपने जो भी फॉन्ट्स यूज किए हैं, आपने जो भी इमेजेस यूज किए हैं, आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, all of the images, fonts, objects and the important elements
imported elements which you have used while designing this particular document, and you will have to create a package of this. Okay, file package, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे कैसे डायलॉग बॉक्स आएगा, देखो links and images, 1 links found, 0 modified, 0 missing, 0 inaccessible images, 0 embedded, 1 use RGB color space. ठीक है, इसके अंदर आएंगे fonts, which fonts you have used in the entire document, वो वाले fonts आएंगे इसके अंदर. Next, links and images, देखो एक ही इमेज यूज किया है मैंने, उतना ही लिंक मुझे इसमें दिखेगा. कलर्स एंड इंक्स, देखो अभी यहाँ पे कलर्स कितने हैं, it will also export all of the colors which you have used in the document. It will create a package of that. ठीक है, next is print settings. ठीक है, print settings मैंने जो select किए थे, it is Adobe PDF print settings. इसके अंदर जो भी print रहेगा, CMYK, color channels, areas, जो भी documents के settings रहेंगे, it will save all of that according to the print settings. Next is external plugins which I have used. ठीक है, अगर मैंने कोई plugin download किया है and I have installed it in this software or I have added in this software, I have worked with that plugin in this file. उस plugin के साथ मैंने अगर work किया है file के अंदर, then I will get external plugins in this, and it will export that also plugins in a separate package. ठीक है, पैकेज मतलब क्या होता है, इट क्रिएट्स अ फोल्डर जिसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है उसके अंदर जो भी यूज किया है, इट विल एक्सपोर्ट ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स इन अ सिंगल फोल्डर. ठीक है, मतलब एक पूरा पैकेज क्रिएट, जैसे हम लोग जिप फाइल क्रिएट करते हैं. ठीक है, जिप फाइल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फाइल्स इंक्लूडेड इन द फोल्डर. फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है या फिर जितने भी फाइल्स आपने जिप किए सिलेक्ट करके, इट विल क्रिएट अ सिंगल फाइल आउट ऑफ दैट. ठीक है, इसके अंदर भी वैसे ही होगा, एक पैकेज क्रिएट होगा, so that you can use anywhere where you open this software. ठीक है, then I will create a package. The publication must be saved before continuing. ठीक है, और okay, I will save this. Next, it will create a file size, file name. ठीक है, अभी name क्या डालना है मुझे, name is DESIGNING. ठीक है, designing, और कुछ डालना रहेगा आपको इंफॉर्मेशन. ये जो रहेगा इसके अंदर आपका पूरा इंफॉर्मेशन आएगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट होगा उसके अंदर जिसने ये किया है, कॉन्टेक्ट किया है. आई विल जस्ट ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. okay, this is a contact number, company name is BPU, address is PIMPRI, पिंपरी. ओके, फोन नंबर वगैरह रहेगा जो भी आप लोग डालोगे. ठीक है, ईमेल एड्रेस abcd@abcd. ठीक है, .com. instruction, if you want any of the instructions to be shown in the package, then you can add that. ठीक है, इतना information अगर आप complete करोगे then you can continue. ठीक है, then it will show you the path. ठीक है, path दिखाएगा. अब यहाँ पे जो है मेरा फाइल का नेम क्या है, लोगो. ठीक है, it will create a logo file. Okay, you need to copy those. You need to just save the path of the file. Click on the package. अब यहाँ पे कुछ options है. See, copy fonts, copy link graphics, update graphic links to the package, use document hyphenation exceptions only. ठीक है, documents के अंदर जो भी रहेंगे, view report, include fonts and links from hidden and non-printing content. अभी ये अगर ऑप्शन ऑन करोगे आप, तो इसके अंदर आपका जो फॉन्ट्स आपने जो पेस्ट बोर्ड के ऊपर फॉन्ट्स रखे हैं, डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स नहीं, पेस्ट बोर्ड के ऊपर भी अगर कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट्स रखे हैं, इट विल आल्सो इंपोर्ट दोज टाइप ऑफ फॉन्ट्स इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्यू द रिपोर्ट. यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू द रिपोर्ट एंड देन यू हैव टू यू विल गेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट. मतलब आपका जो टाइमिंग रहेगा, आपका जो डेट रहेगा, आपने कौन से फॉर्मेट में सेव किया है, इट विल क्रिएट अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, मतलब ये जो रिपोर्ट्स है जब आप क्रिएट करते हो, सम ऑफ द क्लाइंट्स नीड्स, मतलब अगर ऑनलाइन अगर अपलोड कर रहे हो आप लोग, you are if you are working for a freelancer world, it will show you the different timings which you have used or
the timing required for creation of the documents. ठीक है, वेब टाइप के अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोग यूज कर रहे हो then it will show all of those settings. ठीक है, तो ये अभी डिफॉल्ट ही रखता हूँ मैं. नेक्स्ट आई विल जस्ट क्रिएट अ पैकेज. Okay. So now in this warning, restriction apply for to copying font software for use by a service provider. You are required to compile with the application copyright law and the terms of your license agreement. For font softwares, license from Adobe, the license agreement provides that you may take a copy of the fonts you have to use for the particular file to the commercial printer or other service providers, and the provider may use the fonts to process your file. See, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई भी फॉन्ट यूज कर रहे हो, फॉन्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो आप कंपनी में कोई भी ऐसे डिजाइनिंग के वगैरह वर्क करते हो, तो उनके पास सब कुछ लाइसेंस वर्जन रहता है. ठीक है, जो फॉन्ट्स रहते हैं वो भी फॉन्ट का एक उनका फॉन्ट इंजन रहता है. उसके अंदर दे हैव 1000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे फॉन्ट्स रहते हैं उनके फॉन्ट इंजन के अंदर. ठीक है, so they have the license for all of the color selections or font selections. जो भी आप लोग कलर सिलेक्ट कर रहे हो, फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हो, अब जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से जो भी कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो, एवरीथिंग, जो भी इमेजेस यूज कर रहे हो. अभी मैंने जो इमेज यूज किया है दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल. ठीक है, गूगल से मैंने डाउनलोड किया है एंड दैट आई हैव यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पस. ठीक है, बट एट द कमर्शियल लेवल और एट द कंपनी लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, दे डू नॉट यूज दिस डाउनलोडेड टाइप ऑफ कंटेंट, दे ऑलवेज परचेज दिस. ठीक है, इमेजेस अगर आपको लेने पड़ेंगे देन देयर आर सेवरल वेबसाइट्स. अगर फ्री रहेगा तो free source image रहेगा then it will be okay, but if it is a license or it is a copyrighted, then you have to purchase that image. ठीक है, जैसे कोई Shutterstock रहेगा, FileStock रहेगा, these are the websites. ठीक है, maximum they use Shutterstock images because Shutterstock have a greater file engine. ठीक है, it is also a file engine जिसके अंदर मैक्सिमम फाइल्स, इमेज फाइल्स आपको मिलेंगे रिलेटेड टू द कंटेंट. बहुत सारे इमेज फाइल्स मिलेंगे आपको दैट आर कॉपीराइटेड, मतलब it will have a certain amount to be purchased, so you can use that in your designs. ठीक है, अभी अगर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फाइल डिजाइन किया है और उसके अंदर किसी का तो फोटो डाला है. ठीक है, इफ आई हैव यूज्ड एनी ऑफ द एक्टर्स फोटो या फिर एक्टर्स फोटो, कोई मॉडल रहेगा उसका फोटो मैंने यूज किया है एंड आई हैव पब्लिश्ड इट ऑल ओवर द इंटरनेट. पब्लिश किया मैंने सेवरल वेबसाइट्स के ऊपर without taking the proper permissions of that actor, or I am promoting a certain brand under his name. ठीक है, so उसका जो रहेगा वो copyright issue हो जाएगा because I haven't given any of the idea for that my brand promotions to that particular ambassador. ठीक है, उसको जो brand ambassador बोलते हैं हम लोग, उसका पहले शुरू परमिशन लेना पड़ेगा आपको. If I am promoting any of the products under this designs, then I have to take the proper permission and proper copyrights. ठीक है, copyrights का जो issue रहेगा ये पूरा विंडो के अंदर वही दिखाया है. You need to add the permissions, or if you need to print it document. अब यहाँ पे देखो, for font software license from Adobe, the license agreement provides that you may take a copy of the fonts. Fonts का copy लेना है and you have used fonts you have used for a particular file to a commercial printer or other service provider, and the provider may use the fonts to process your file, provided the provider has informed you that it has the right to use the particular software. For other font software, please obtain permission from your vendor. ठीक है, vendor के पास से आपको पूरा permission लेना है. In short, you need to if you are working on a commercial level or if you are making money using this software, then you need to take proper copyright information. You need to see the copyright law and the terms and conditions of the use of everything. Okay, okay, I will show okay, and now it has exported the complete package. See, desktop पे save किया है. This is a complete package. I will just share you the screen for the desktop. ठीक है, सी डेस्कटॉप के ऊपर भी क्रिएट किया है मैंने.
Here is the file at the bottom left corner. ठीक है, bottom left corner के ऊपर ये फाइल है, ये फोल्डर है. ठीक है, I created this folder. इस यहाँ पे लोगो फोल्डर करके क्रिएट हुआ है. I will just open this. See, double click किया तो you will get different types of subfolders. ठीक है, you will get different types of subfolders in this. I will just increase the folders. ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखो ये सारे फोल्डर्स हैं. इसके अंदर है डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स, डॉक्यूमेंट लिंक्स आर द ग्राफिक्स. ठीक है, ग्राफिक्स के जो लिंक रहेंगे इट विल बी सेव्ड इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ठीक है, डिजाइनिंग. सी, डिजाइनिंग का मैंने एक रिपोर्ट क्रिएट किया है. I click on this, I'll just open this in a WordPad or a Notepad. ठीक है, देखो Adobe InDesign printing instruction for service provider report. ठीक है, रिपोर्ट है पूरा जो आपने क्रिएट किया है, क्या क्या यूज किया है इसके अंदर, कौन से फॉन्ट्स यूज किए, कलर्स कौन से यूज किए. इट विल क्रिएट अ कंप्लीट रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग. ठीक है, पब्लिकेशन नेम logo.ind. ठीक है, पब्लिकेशन नेम, पैकेज डेट एंड टाइम, क्रिएशन डेट एंड टाइम. ठीक है, मॉडिफिकेशन डेट. इसके अंदर आगे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जिसने क्रिएट करके आपको भेजा है, दैट इज कंपनी नेम इज DPU, कॉन्टैक्ट इज 1234, एड्रेस डालोगे, एड्रेस आएगा यहाँ पे पिंपरी, फोन नंबर, ईमेल, फैक्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एंड अदर नोट्स. देखो अभी एक्सटर्नल प्लगइन्स कुछ भी नहीं यूज किया हमने. आई हैव यूज्ड वन फॉन्ट यूज्ड, जीरो मिसिंग, जीरो एम्बेडेड. फॉन्ट पैकेज सेंचुरी गोटिक बोल्ड, टाइप इज ओपन टाइप, ट्रू टाइप, स्टेटस इज ओके. देखो कौन कौन से फॉन्ट्स यूज किए, कौन से फॉन्ट फैमिलीज यूज किए, व्हाट आर द टाइप ऑफ फॉन्ट्स दैट वी हैव यूज्ड. ठीक है, ओपन टाइप मतलब क्या रहेगा, ओपन टाइप एंड ट्रू टाइप इज द यूनिवर्सल फॉन्ट. ठीक है, सेंचुरी गोटिक है, दिस इज अ यूनिवर्सल फॉन्ट. अगर कोई लाइसेंस रहेगा देन इट विल गेट अ लाइसेंस फॉन्ट और कॉपीराइट टाइप. ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा. नेक्स्ट इज कलर्स एंड इंक्स. ठीक है, कलर्स एंड इंक्स, 4 प्रोसेस इंक्स. ठीक है, 4 कलर्स यूज किए हैं इसके अंदर, 0 स्पॉट इंक्स. ठीक है, स्पॉट कलर एक भी यूज नहीं किया है. नेक्स्ट इज नेम एंड टाइप, प्रोसेस, सियान, एंगल इज 71. ये जो है ये पूरे डॉक्यूमेंट के डायमेंशंस है, कहाँ कहाँ पे कौन से कलर्स यूज किए. ठीक है, कंप्लीट रिपोर्ट आता है उसका, मतलब डायमेंशंस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो डायमेंशंस रहेंगे which I have used according to the scale, जो स्केल यूज किया है उसके हिसाब से अगर मैं फॉन्ट देखता हूँ तो इट विल शो दैट टाइप ऑफ फॉन्ट्स. प्रिंट सेटिंग्स, देखो अभी प्रिंट सेटिंग्स भी है. फॉन्ट्स थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ मैं. ठीक है, you will get different types of print settings. It is exported to Adobe PDF file. Number of copies is 1, reader spread is no, even and odd pages. ठीक है, pages कौन से print किए, all pages, proof no, tiling none, scaling 100%. ठीक है, page position upper left, print layers, visible and printable layers. ठीक है, bleed size, यहाँ पे जो bleed है, bleed. ठीक है, now what is bleed? Bleed is the area in which bleed is the area from which the document will not print the images and also the text. ठीक है, टेक्स्ट भी प्रिंट नहीं होगा उस एरिया का, और उसके अंदर जो इमेजेस रहेंगे वो भी प्रिंट नहीं होंगे. इन शॉर्ट इट इज जस्ट अ ब्लैंक एरिया और अ नेगेटिव स्पेस. ठीक है, और it is the area which will not be printed in the final document. ठीक है, bleed area हम लोग specifically we use to cut the related document. ठीक है, ये for example आपको दिखाता हूँ मैं what is a bleed area. This is a bleed line. ठीक है, मतलब जो एंड लाइन रहेगा जिसके अंदर आपका इमेज भी नहीं आएगा और आपका जो टेक्स्ट रहेगा, इट शुड नॉट बी इन द ब्लीडिंग एरिया. ठीक है, सेफ्टी लाइन, ब्लीड एरिया, कट लाइन. ठीक है, ऐसे कुछ एरियाज रहेंगे, इट शुड नॉट बी इन दैट लाइन. ट्रिम एरिया, ठीक. अब ये जो रहेगा
ये वाला जो एरिया रहेगा, न्यूज़पेपर्स आप लोगों ने देखे रहेंगे, न्यूज़पेपर्स। इन न्यूज़पेपर्स फ्रंट पेज, ठीक है। अब यहाँ पे इतने अच्छे से दिख रहा नहीं है, आई विल जस्ट शो यू वेयर इज द ब्लीड लाइन। ठीक है, अभी इन्होंने डिजाइन करते वक्त ही उतना ही डिजाइन किया है, दे हैवंट शोन द ब्लीड लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे मार्क रहता है, प्लस साइन चारों कॉर्नर्स के अंदर। अगर आप लोग के पास न्यूज़पेपर है अभी घर पे, तो आप लोग अगर ओपन करके देखोगे तो नीचे ऐसे लाइंस रहते हैं, ऐसे एल, यहाँ पे एल रहता है, यहाँ पे एल रहता है, और यहाँ पे भी ऐसे, नीचे भी ऐसे चार लाइंस रहते हैं। देन यू हैव कलर्स, प्रिंटिंग कलर, CMY के ऐसे चार डॉट्स रहते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर इज प्रिंटेड इन ऑलवेज CMY के कलर मोड, और उसका जो ब्लीड एरिया रहेगा दैट इज अ कटिंग एरिया। ठीक है, उस एरिया के आगे ना आपका टेक्स्ट जाएगा और ना आपके इमेजेस जाएंगे। ठीक है, तो उसका एरिया जो रहता है दैट इज अ कटिंग एरिया और द ट्रिमिंग एरिया ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज अ ब्लीड एरिया। ठीक है, किसी के पास न्यूज़पेपर रहेगा तो यू कैन ओपन एंड सी न्यूज़पेपर, उसके अंदर जो कटिंग एरिया रहते हैं वो लाइंस वो आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर ना ना ही आपका इमेज आएगा ना ही आपका टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, ऑल्सो आई विल शो यू वन ऑफ द टूल इसके अंदर जो है, दिस इज अ ग्रेडियंट स्वैच टूल। ठीक है, के नीचे ही आएगा आपको एक ग्रेडियंट फेदर टूल। ठीक है, if you want to use this if you want to use this, you have to have an image file or an object file। इसके अंदर you need to add a gradient transparency। ठीक है, gradient transparency अगर आपको ऐड करना है, you need to add gradient feather। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं सेम वैसे ही इसका भी फाइल वर्क होगा। सी, यहाँ पे जो है ग्रेडियंट फेदर अप्लाई किया है। नेक्स्ट इफ आई प्लेस इमेज, इसके पीछे कुछ अगर इमेज डालता हूँ मैं, that image will be transparent। देखो, दिस इज द कंप्लीट इमेज। ये जो है इसका ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुआ है, ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ग्रेडियंट अगर आपको अप्लाई करना रहेगा किसी भी इमेज के अंदर, ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, तो ऐसे आप लोग उसको ऐड कर सकते हो। ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी फेदर। अभी अपने फोटोशॉप में ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन था फेदर का, इंक्रीज एंड डिक्रीज द फेदर ऑफ द बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर्स के वहां से आप लोग फेदर यूज कर सकते थे, जिससे वो आपके जो बॉर्डर्स है तो काफी लाइट होते थे और ट्रांसपेरेंट होते थे। ठीक है, फेदर ऑप्शन फोटोशॉप में भी आपने यूज किया, इलस्ट्रेटर में भी यूज किया रहेगा। ठीक है, तो इन डिजाइन में भी ग्रेडियंट फेदर का ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, यू नीड टू एड ट्रांसपेरेंसी टू द कॉर्नर्स।
and you have to use this option, gradient feather option. ठीक है. I have also shown you some of the options included under hyphenation tab. Okay, hyphenation. Also, you can change the workspace. Okay, advanced digital publishing. डिजिटल पब्लिशिंग के लिए आएगा तो इसके अंदर बहुत सारे नए टूल्स हैं. Animations, you can also create animations, timings, media, object states, buttons and forms. ठीक है, इसके अंदर आप लोग buttons create कर सकते हो, hyperlinks create कर सकते हो, because it is a digital publishing and desktop publishing software. ठीक है, इसके अंदर ये सारे options भी available हैं, जिसको आप लोग explore करके उसके ऊपर भी work कर सकते हो. By creating animations, यहाँ पे आपको first select करना पड़ेगा. See, this is a SWF file. अगर इसमें कुछ एनिमेशन रहेगा या if you have created and imported any of the animation in this, then you need to play this in this digital publishing tab. ठीक है, इस टाइप का टैब रहेगा. This is digital publishing. I will go to essentials. These are the essential tools. Interactive PDF. ठीक है, देखो PDF create करने के लिए क्या क्या यूज होता है. बटन्स. ठीक है, तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमको बटन्स चाहिए रहेंगे. टिक मार्क्स जो रहेंगे या फिर ऑप्शन बॉक्स, रेडियो बटन्स, ऑप्शन बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स, ग्रेडियंट बटन्स, वैसे टाइप के हम लोग यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर सकते हैं. टाइपोग्राफी टैब. ठीक है, अब इसके अंदर जो है दो ऑप्शंस हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ. ठीक है, टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी. ठीक है, ऐसे दो ऑप्शंस है. अभी इसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टाइपोग्राफी इज अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, टाइपोग्राफी इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड कैलीग्राफी इज द डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं और अलग अलग काम होते हैं. ठीक है, टाइपोग्राफी में और कैलीग्राफी में. इट इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस. कोई कोई लोगों को क्या लगता है यार टेक्स्ट को कुछ भी ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करके कुछ ऐसे क्रिएट कर दिया, एंड इट विल क्रिएट टाइपोग्राफी और इट विल क्रिएट कैलीग्राफी. ठीक है, सो दैट विल बी अवेलेबल. सर परत सांगा ना, टायपोग्राफी आणि कॅलिग्राफी म्हणजे काय? Okay, okay. So typography is a creation. Typography is typography is the arrangement of text. ठीक है, अरेंजमेंट. अभी जो हम लोग ये ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, I will show you one example. Typography. See, this is typography. ठीक है, अरेंजमेंट जो आप लोग अरेंजमेंट करते हो टाइपोग्राफी के अंदर, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट. This is a very good example of typography. You have different types of arrangement of text. Okay, so this will be included under the I will continue in 5 minutes.
ओके देखो ये दिस इज अ टाइप ऑफ दिस इज अ टाइपोग्राफी, दिस इज कैलीग्राफी, ठीक है। डिजिटल टेक्स्ट टाइपोग्राफी विद कैलीग्राफी। अभी यहाँ पे जो है आई हैव डिजाइंड एंड आई हैव एडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिजाइंस। व्हेन यू यूज अ ब्रश मतलब उसके अगर आप लोग शेप चेंज करते हो, शेप के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, दैट इज अ टाइप ऑफ टाइपोग्राफी, दैट इज टाइप ऑफ कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी इसके अंदर कैलीग्राफी के जो फॉन्ट्स रहते हैं, एंड कैलीग्राफी इज अ एंशिएंट मेथड, ठीक है। दिस इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज अ डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। एंड टाइपोग्राफी इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट। इतना याद रखना है आपको। कैलीग्राफिक फॉन्ट्स, ओके, दीज आर टाइप्स ऑफ कैलीग्राफिक फॉन्ट्स। टाइपोग्राफी अगर आप सर्च करोगे तो अभी यहाँ पे कैलीग्राफी में they have single letters, they have just used strokes and brush designs to create this type of text, ठीक है। तब टेक्स्ट के अंदर ही उन्होंने थोड़ा सा डिजाइनिंग करके they have used a calligraphy, they used a calligraphic pen और calligraphic brush to design this type of text, ठीक है। तो ऐसे कुछ आउटपुट आएगा आपका if you are using a calligraphy brush or calligraphy font, ठीक है। दिस इज डिफरेंस। आपको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट टाइप ऑफ टाइपोग्राफी यू कैन क्रिएट, व्हाट टाइप ऑफ कैलीग्राफी टेक्स्ट यू कैन क्रिएट फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना? Anyone have any doubts? They can ask. Till then, I will take your attendance. No, sir. सर हाँ बोल. तुम्ही बोलले होते की जर आपण डॉक्युमेंट मध्ये फोटो ऍड केला तर आपण ते डॉक्युमेंट दुसऱ्या ह्याच्यात नाही ओपन करू शकत, कारण की लिंक डेस्कटॉप करून घेतली होती तुम्ही म्हणून. म्हणजे तुम्ही डॉक्युमेंट मध्ये फोटो ऍड केला होता ना, आणि तुम्ही बोललेले की हे आपण दुसऱ्या लॅपटॉपवर किंवा पीसी वर ओपन नाही करू शकत कारण की हे या पीसी मध्ये लिंक आहे फोटो. तर मग जर आपल्याला ते ओपन करायचं असेल तर काय करायला लागेल? पॅकेज क्रिएट करायचं. हे बघ, हे पॅकेज आहे ना, मी तुम्हाला दाखवलं नाही पॅकेज. हे बघ, हा असा पॅकेज असतो. See, this is a package. ये दिख रहा है क्या आपको? This is a package. ये वाला जो फोल्डर है, मैंने जब यहाँ से एक्सपोर्ट किया था कंट्रोल P करके, और क्रिएटेड फाइल एंड पैकेज, ठीक है। अल्ट शिफ्ट कंट्रोल P, यहाँ से आपको जो पैकेज क्रिएट होगा, इट विल क्रिएट अ सिंगल फोल्डर। तो वो फोल्डर आप लोग कॉपी करके दूसरे डेस्कटॉप के अगर आप ऊपर अगर ओपन करोगे तो इट विल ओपन विद दोज लिंक्स एंड विद दोज फॉन्ट्स। देखो जैसे रिपोर्ट क्रिएट होता है पूरा। दीज आर द डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स, जो फॉन्ट्स मैंने यूज किए, ठीक है। दिस इज द फॉन्ट व्हिच आई हैव यूज्ड, ओके। दिस इज द इमेज व्हिच आई हैव यूज्ड इन माय डॉक्यूमेंट. This is the report, complete report when I have saved and when I have uploaded the document. Okay. And this is the InDesign file. The main file रहेगा आपका. That will also be saved as a package.
इस पैकेज को अगर आप कॉपी करके दूसरे फाइल में ओपन करोगे या फिर दूसरे इसमें दूसरे लैपटॉप में या फिर पीसी में ओपन करोगे, देन इट विल बी ओपन अकॉर्डिंग टू दैट फॉन्ट एंड द इमेजेस। तो सब फॉन्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपको विजिबल रहेंगे, ठीक है। इट विल नॉट गेट एनी ऑफ द एरर, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके। Any other doubts? नो सर। ठीक है। So with this, we come to an end of this session. Everyone should practice. जिसके पास PC है, सब लोग practice करो. Rest of them, write down the tools. Afterwards, you can practice them. ठीक है? So see you in next थैंक यू सर। बाय सर। lecture.